Question number 281, Sri Ram Mohan Naidu. Sir, question 281. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। अन्य सदस्य। Sir, first of all, I'd like to start my question by saying that in the answer it has been mentioned that in principle approval for 100% disinvestment of RINL along with its subsidiaries has been agreed, sir. But I would like to say that we, on behalf of the people of Andhra Pradesh, totally oppose the 100% disinvestment of this plant. The central government also needs to understand that 16,500 farmers donated to the tune of 22,000 acres for establishment of this plant, sir. The central government didn't come to Vizag to establish the plant. The people of Andhra Pradesh, not just present Andhra Pradesh, but including Telangana, all the Telugu people fought so that the plant will come to Andhra Pradesh, especially Visakhapatnam, so that the people, the youth will get jobs, sir. 16,500 farmers में से 8,200 लोगों को ही जॉब मिला है. 8,300 लोग अभी बाकी है, sir. Then how will the central government ensure that these 8,300 people will get jobs? Even the new notifications are not releasing right now because of the disinvestment, and also no promotions are being given. So what is the central government, how will the central government ensure that the people who have donated land are going to get jobs in the future, sir? So this is not acceptable at all. We totally oppose the 100% privatization of this plant, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सरकार का जो निर्णय है ये बहुत ही उचित निर्णय है, और जैसा बता रहे थे वो कि 16,000 से अधिक जो किसान हैं उनकी जमीन ली गई थी और उसमें सहमति बनी थी कि 5,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी, और आज की तारीख में जैसा वो खुद बता रहे हैं 8,000 से ज़्यादा लोग जो डिस्प्लेस्ड हुए हैं उनको नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा भी उनको जितनी तरह की और सुविधाएं हैं उनको उसमें कंपनसेशन दिया गया था, उनकी आवास की सुविधा दी गई थी, उनके और भी जो है RINL की तरफ से हर एक फैमिली को 1750 रुपये दिए गए थे। इसलिए जितनी भी सुविधाएं थी वो दी गई है, और ये प्लान कैसे आगे और अच्छा से काम करे, कैसे इसमें कैपिटल और लगे, कैसे इसकी एफिशिएंसी बढ़े, कैसे ये मॉडर्नाइज हो, इसके लिए जरूरी है कि इसका डिसइन्वेस्टमेंट का जो निर्णय लिया गया है वो उचित है। और साथ ही मैं भी बताना चाहता हूं कि 1999 से 2002-03 में जितने भी हमारे डिसइन्वेस्टमेंट के केसेज हुए थे उसमें 11 जो केसेज हैं, अभी आप 2019-20 का जो सर्वे देखें, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें देखा गया है कि प्री जो हमारा डिसइन्वेस्टमेंट था और पोस्ट डिसइन्वेस्टमेंट था उसमें बहुत अच्छी जो है प्रगति हुई है। इसलिए ये सबके हित के लिए है और इसलिए इसका फिर से पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य। I don't agree with the answer, sir, that it's not for the rethinking. Definitely the central government has to rethink, sir, 100% disinvestment. और मैं निवेदन करता हूं, जनता ने इनको अपने स्थान दिखा दिया है, पूरा इनको नकार दे दिया है। पूरा 5 प्रदेश में पूरा इनको कहां पे बिठाना चाहिए बिठा दिया है। कम से कम क्वेश्चन अवर है, ये मेंबर्स का हक है, सर। इट इज द राइट ऑफ द मेंबर, सर। पीपल हैव शोन द प्लेस टू देम, लेट देम ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द पीपल। इसलिए कृपया क्वेश्चन अवर अलो करें, ऐसा मैं उन लोगों से आपके थ्रू प्रार्थना करता हूं, सर। Sir, once again, I'd like to request the central government to rethink on the disinvestment, sir. Even there is no clarity in the answer also. It is saying 100% disinvestment, and it also says that no decision yet on mode of transfer of land has been taken, sir. What is happening, sir? We don't understand what exactly, how is it going to happen? And my second question will be, sir, because the minister himself is talking about betterment of the plant, of making it more efficient and all, then why hasn't the central government accorded any captive mine to the Visakhapatnam steel plant? Whereas in the sale, sir, there are 14 captive, non-captive mines are there, and 3 iron ore mines have also been allocated. Then even the standing committee has also at one point of time recommended that the captive mine has to be given for RINL also.
but for so many years it has not been accorded. Then if really the central government thinks about improving the efficiency of the plant, improving the profitability of the plant, why hasn't any captive mine been allocated to Visakhapatnam steel plant, sir? अध्यक्ष महोदय, ये जो RINL है उसकी स्थापना 1983 में हुई थी और 1992 से ये प्लांट काम कर रहा है और 1971 से इस प्लांट की जमीन के लिए एक्विजिशन की कार्रवाई की गई थी और उस समय ये सेल का हिस्सा था और 93 में जब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ और ये जब काम करना शुरू किया तो ये 12 वर्षों तक प्रॉफिट में रहा। इनके पास नहीं भी था अपना कैप्टिव माइंस, फिर भी ये प्रॉफिट में रहे। तो कैप्टिव माइंस के चलते सिर्फ इनका लॉस नहीं हुआ, बल्कि हुआ क्या कि पहले इनकी कैपेसिटी 3 मिलियन टन की थी, उसके बाद इसका मॉडर्नाइजेशन का एक्सपेंशन का हुआ, उसमें इनको 22,000 करोड़ की जो है इनकी लायबिलिटी हो गई और आज की तारीख में इसके चलते ये पिछले 10 सालों में 7,000 करोड़ से ज्यादा इनका लॉस हुआ है और हमारा इनका नेटवर्क भी काफी कम गया। तो सबके लिए जरूरी है कि फिर से प्लांट का रिवाइव करें, इसके लिए ही एक ऑप्शन है कि इसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, ये निर्णय उचित है। मरगनी भरत, We don't agree with the answer of the minister, sir. Sir, the minister is saying we got the loss around 7,000 and odd crores, sir. Sir, why the company has became loss-making, sir? Just because you didn't allotted captive mines to the Visakhapatnam steel plant RINL, sir. And at the same time, the RINL has a debt of around 20,000 and odd crores, sir. With an highest interest rate of 14%, sir. Sir, how can any company will survive with a 14% of interest rate, sir? Our Honorable Chief Minister also have written a letter to the Honorable Prime Minister to rethink, not to privatize the steel plant, sir. In this occasion, I would like to say, sir, steel plant is called to be, we have a Nanudu in Telugu, sir, that is called to be Vishaka Ukku Andhrula Hakku. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు ప్రైవేటైజేషన్ ఒప్పుకోరు సార్. 32 మంది ప్రాణ త్యాగాలతో ఏర్పడిన ఈ యొక్క విశాఖ ఉక్కు సార్ ఆల్మోస్ట్ స్వచ్ఛందంగా 1000 ఎకరాలు ప్రజలు ఇచ్చారు సార్. మీది ఆత్మాభిమానంతో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్ని కాపాడాల్సిందిగా మినిస్టర్ గారు అదే విధంగా గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ఒకసారి రీథింక్ చేసి దీన్ని క్యాపిటల్ మైన్స్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం సార్. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्लांट लॉस में गया, इसका सिर्फ कारण ये कि इनको जो अलॉट नहीं किया गया कैप्टिव माइंस वो नहीं है, बल्कि इनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम रही, इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हुआ और जैसा मैंने चर्चा किया कि जो एक्सपेंशन का प्रोग्राम लिया गया और जो इसमें लोन दिए गए तो इनका जो है डेट लायबिलिटी बहुत बढ़ गया। इस कारण से आज की तारीख में इसका नेटवर्क भी 3,000 के आसपास आ गया। इसलिए जरूरी है कि इसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए और तभी जो है जो एक सोच है कि ये प्लांट से उस पूरे इलाके का विकास होगा, लोगों का फायदा होगा और देश का विकास होगा, इसलिए इसका डिसइन्वेस्टमेंट करना बहुत ही उचित है। केसी देनी श्रीनिवास। Sir, I want to know from the minister through you whether SAIL, Steel Authority of India, which is having 8 plants, 5 integrated plants, 3 special plants and 1 ferroalloy plant and many other joint ventures, whether they are thinking of disinvestment of SAIL. If they are not thinking of disinvestment of SAIL, why are they thinking of disinvesting or privatizing Visakhapatnam steel plant, which is a saga of struggle and sacrifice, sir? Nearly 32 people died in this struggle to achieve this plant, and also 5 from my city, Vijayawada, have died in this struggle, sir. So I want to know from the minister whether they are privatizing SAIL or not. If they are not privatizing SAIL, why are they privatizing this RINL, which you have a chance to bring it to profits by allocating captive mines for this plant, sir? Thank you. अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात पर पहले भी बता दिया कि ये जो प्लांट लगाया गया और किस कारण से ये जो है घाटे में रहा, किस कारण से इसका नेटवर्क कमा है। और अभी आप सामने देखें NINL का जो डिसइन्वेस्टमेंट किया गया और अभी आप देखें 2 साल से उनके कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही थी। जो उनका जो अभी हुआ है, उनका जो रेट आया है, उनके पास जो रिजर्व
जो प्राइस था उससे भी डबल आया है। तो मैंने पहले भी बताया कि जो पहले भी किया गया था जिसका डिसइन्वेस्टमेंट उनमें अच्छा काम हुआ है, अभी हाल में भी हुआ है। तो इसलिए ये जो कहना कि सिर्फ इसको माइंस नहीं दिया गया है, इसके चलते ये लॉस में, ऐसी बात नहीं है। उसमें आज हो क्या रहा है, वो प्लांट तो मैनेजमेंट चेंज होगा, तो मैनेजमेंट चेंज होगा लेकिन वो प्लांट तो रहेगा, उसका और एक्सपेंशन होगा, उससे लोगों को और रोजगार मिलेगा, जो कर्मचारी हैं उनको और फायदा होगा। आखिर जो प्राइवेट सेक्टर वाले भी आएंगे तो उनको तो जरूरत पड़ेगी मैन पावर की, और उनको जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं वो सब मिलेंगे। तो ये जो डिसीजन है गवर्नमेंट का वो सही है और इस पर कायम है सरकार। नंबर 282 सुनील तटकरे। नंबर 282 माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 282 सभा पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। Konkan Railway project. Konkan Railway has acquired various land in Apta to Roha, but eventually these railway stations were included in Central Railway, and the people who were affected by this project have not been recruited by the both Konkan Railway and the Central Railway. Whether the government has plans to resolve this issue and give justice to the project affected people by providing job. One, and is that sales amount collected on diesel is distributed to different zones of railways, but no amount is allocated to Konkan Railways. Whether the government has any plan to allocate to the share to the Konkan Railway for different infrastructure works in Konkan Railway, like Veer to Mahad new railway line project, Chipun to Karad new railway line project, and any budgetary provision can be made. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ कि कोंकण रेलवे एक कॉरपोरेशन है जिसका गठन 1990 में हुआ है और जिसमें भारत सरकार का शेयर 61% है, महाराष्ट्र सरकार का 22 है, गोवा का 6 है और कर्नाटका का 15 है और केरल का 6 है। ऐसा नहीं है कि कोंकण को रेलवे को महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार ने कोई मदद की नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महाराज, 2021 में वर्ष 2021 में 235 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने कोंकण रेलवे को मदद की है। उसके बाद 380 करोड़ रुपए कोंकण रेलवे को केंद्र सरकार ने आज तक मदद की है। इसके बाद भी महाराष्ट्र सरकार उसको मदद कर सकती क्योंकि ये कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन है, ये जोन नहीं हमारा, लेकिन हमने उनको बार बार 380 करोड़ रुपए की मदद कोंकण रेलवे के लिए की है। Sir, can I ask Honorable Minister that Konkan Railway can be merged in Indian Railways, one, and another thing, especially Karad to Chipun and Vaibhavat to Kolhapur, these projects are well important for the Konkan area to connect Western Ghat. So for that also, any budgetary provision can be made through the project by the central government. अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने सूचित किया है कि कोंकण रेलवे को भारतीय रेलवे में समाविष्ट किया जा सकता है क्या? अध्यक्ष महाराज, आज के तारीख में ऐसा कोई विचाराधीन नहीं है, लेकिन भारत सरकार हमेशा के लिए कोंकण रेलवे को मदद करती आ रही है। श्री संजय यादव, श्री एसपी पाटिल। दिया है, शायद जो रेलवे स्टेशन पे गाले मिल रहे हैं लोगों को कुछ चीजें बेचने के लिए, तो जिनकी जमीनें गई है उन लोगों को अगर उन रेलवे स्टेशन पे दूध, फल, चावल या कुछ रेलवे के कैंटीन की सुविधा उन लोगों को प्राइवेट मिल जाए तो उनको भी रोजगार मिल जाएगा। और हर एक बच्चे को अगर कुटुंब में जमीन गई है उसको अगर नौकरी मिलेगी रेलवे में तो उनकी जितनी भी आमदनी कम हुई है उनको नई आमदनी मिलेगी। क्या सरकार इसके बारे में कुछ विचार कर रही है? अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य सदस्य की सूचना बहुत ही अच्छी है, लेकिन जिनकी जमीन गई उनको मुआवजा केंद्र सरकार ने दिया है, लेकिन आज के तारीख में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। उसकी एक पद्धति है, उसके टेंडर निकालते हैं, अगर वो उस पद्धति से अगर आते हैं तो उनको उसका फायदा मिल सकता है।
283, क्वेश्चन नंबर 283, ओम पवन राजे बिलानकर, श्री अरविंद सावंत, माननीय मंत्री जी, श्री शशि थरूर जी, चिंता मुद्रा में शशि थरूर जी, नो, निशिकांत दुबे, धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 मेगा हैंडलूम क्लस्टर जो है अनाउंस किए सर, और उसके लिए पैसा दिया। उसमें से 1 मेगा हैंडलूम क्लस्टर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी गोड्डा में है सर। उसके लिए 100 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया, जिसमें कि 20% पैसा जो है राज्य सरकार को लगाना था। झारखंड सरकार पिछले 2 साल से कोई पैसा नहीं लगा रही है और वो 20% नहीं दे रही है। इसके कारण वो प्रोजेक्ट जो भारत सरकार ने पैसा दिया वो सब कूड़े के भाव में चला गया और वो करप्शन की भेंट चढ़ गया। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से ये मांग है सर कि क्या इस प्रोजेक्ट के बारे में भारत सरकार को जानकारी है, और जानकारी है तो क्या इसकी सीबीआई जांच कराएगी? अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हमारे सदस्य ने ही बताया कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, जो भी योजना का वो स्टेट को करना होता है। केंद्र सरकार जो अपनी योजनाएं बताती है वो उसमें राज्य सरकार का योगदान होता है। तो उन्होंने खुद कबूल किया है कि राज्य सरकार ने अपना योगदान नहीं दिया और ये इससे रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन अब नई कई सारी योजना बन रही है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला और लोगों से जुड़ने वाला सेक्टर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग जुड़ते हैं। और इसके लिए कई योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बनाई है, जिनका उनको भविष्य में लाभ मिलेगा। श्रीमती हेमा मालिनी। धन्यवाद। मैं माननीय टेक्सटाइल मिनिस्टर से जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में कला और कलाकार बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उसमें से मधुबनी पेंटिंग बिहार के, कलंकारी आंध्रा के, और पटक चित्र उड़ीसा और वर्ली आर्ट महाराष्ट्र का। इन सब कलाओं को आप लोगों ने टेक्सटाइल प्रोडक्ट द्वारा उसके माध्यम से बढ़ावा दिया है, जो बहुत सुंदर से साड़ी भी बनती है और वॉल हैंगर्स भी और अन्य बहुत चीज़ों में काम आता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे ब्रज क्षेत्र के मथुरा वृंदावन के बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन कला है सांची आर्ट, उसे भी इस टेक्सटाइल प्रोडक्ट में यूज करके उसको बढ़ावा देने का आपका विचार है या नहीं है, तो आप विचार कर सकेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए सवाल है और इसमें हमारी पूर्व टेक्सटाइल मंत्री स्मृति जी ने बहुत अच्छे से काम भी किया है। आज उनका जन्मदिन है, मैं हम सबकी ओर से स्मृति जी को बधाई देती हूँ। जिस तरह से हेमा मालिनी जी ने बताया कि कई कलाओं का साथ में लेकर हम लोगों ने उनकी कला को प्रदर्शित किया है, तो जहाँ जहाँ जो क्षेत्र में वीवर सेंटर होते हैं वहाँ डिजाइन सेंटर होते हैं, उनको किस तरह से उनको ट्रेनिंग मिले, किस तरह से अच्छे से ग्लोबल मार्केट कैच करने के लिए वो काम करे, इसके रिलेटेड बहुत सारी संस्था चलती है। अगर हेमा मालिनी जी से अगर कोई प्रपोजल आता है मथुरा के लिए तो हम उसके बारे में भी जरूर सोचेंगे। हसनैन मसूदी जी, हसनैन मसूदी जी। जनाब हैंडलूम जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। सर कारपेट और शाल वीविंग का दोनों सेक्टर्स का रेगुलेट किया जा रहा है। ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के प्रति इनकी क्या संवेदना है कि एक माननीय सदस्य जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्पों के बारे में, कलाकारों के बारे में बोलना चाहे, कुछ प्रश्न पूछना चाहे, और ये कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र दल
जम्मू कश्मीर के साथ ऐसे ही अन्याय करते आए, वर्षों तक करते आए और जनता ने उनको सबक बार बार सिखाया। सुधी जी, क्वेश्चन नंबर 284 श्री चंद्रशेखर साहू। चंद्रशेखर साहू, क्वेश्चन नंबर 284। माननीय मंत्री जी, श्री राहुल शेवाले, श्री केजी माधव। Speaker sir, for giving me this opportunity. Sir, the PLI scheme for the apparel sector estimates that there will be over 3 lakh skill enhanced jobs that will be added to the work economy. Given that India has a majority of unskilled population, what is the government doing to improve and to increase specializations and skilling in this sector in particular and the funding for the same? अध्यक्ष महोदय, ये सवाल हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और उनके आर्टिजन से जुड़ा हुआ है। ये जो प्रश्न है हमारा पीएलआई स्कीम और जो मेगा पार्क बनने वाले हैं उनको क्लब करके पूछा गया है। फिर भी मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से पहले भी बताया कि हमारे यहाँ बहुत सारे हैंडलूम के क्लस्टर खुले हैं जहाँ आर्टिजन को, वीवर्स को इकट्ठा करके उनको तालीम दी जाती है, उनको वर्कशॉप दिया जाता है, उनको अच्छे से उनको लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। तो ये क्लस्टर डेवलप करके उनको कैसे मार्केटिंग की जाए, बार बार उनकी चौपाल होती है, उनके सेमिनार होते हैं और छोटे बड़े मेलों के माध्यम से उनको ये मार्केटिंग की भी सुविधा दी जाती है। तो उन्होंने जो सवाल पूछा है इससे रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 285 ईटी मोहम्मद बशीर। Not in order. I'm not asking questions. House is not in order. I am protesting against this price hike, petrol and diesel. And that be 286 माननीय मंत्री जी। श्री रंजीत सिन्हा नायक निमालकर। क्वेश्चन नंबर 286, 287 श्री टीआर बालूजी। कोयला मंत्री जी 287। अध्यक्ष महाराज सभापति पर 288 श्रीमती कविता। नहीं पूछ रही सर। मंत्री जी डॉक्टर वेंकट बोरकुलता। क्वेश्चन नंबर 289 श्रीमती चिंता अनुराधा। Thank you, Speaker sir. Although India is dependent on satellite data and computer models for weather forecasting, other advanced countries have moved ahead with integrating supercomputers into the forecasting that collect and visualize data from satellites. These supercomputers can process huge data in seconds, thereby speeding up the process and enhancing accuracy. Has the government taken any steps to integrate supercomputers into its forecasting models? No, Honorable Speaker sir, through you I would like to reply to the Honorable Member. Her concern for the meteorological forecast, particularly in the context of the state of Andhra Pradesh. I think she would appreciate that in the last few years, under the guidance of Prime Minister Narendra Modi, we have a very integrated approach in forecast. It's not only satellites, it's also radars, it's also Doppler weather forecast and automatic weather forecast machines. As a result of which, our forecast is almost 100% accurate. And if you permit me, I would like to show over here, we have the forecast. We have
the forecast which was made on June 1st proved to be 100% accurate after the monsoon season was over. So I think we should be rest assured. Now, as far as Andhra Pradesh is concerned, there has been no visible climate change noted in the past, although overall there has been an increase in 40% in the rainfall across the country. Sir, devices like the agro-meteorological tower and Doppler weather radar systems augment the ground-based observations from the atomic weather stations that measure temperature, sunshine, wind direction, speed and humidity. Can the Honourable Minister provide details of how many agromet and DWR systems have been installed in the country and whether the government proposes to increase the number of such devices in the near future? Thank you. It's important information with the August House. In the last few years, we have made rapid strides in this field. She has rightly pointed out agro-meteorological field units are particularly meant to address the concerns of the farmers. Now, to be very specific to her query, we have 130 right now in total across the country, and of course the number goes on increasing. And as far as Andhra Pradesh is concerned, we have 14. If you permit me, I can give you state-wise breakup also. We have 3 in Arunachal Pradesh, 14 in Assam, 16 in Bihar, 12 in Chhattisgarh, 1 in Goa, 17 in Gujarat, 15 in Haryana, 7 in Himachal Pradesh, 8 in Jammu and Kashmir, 9 in Jharkhand, 22 in Karnataka, 8 in Kerala, 23 in Madhya Pradesh, 1 in Lakshadweep, 3 in Meghalaya, 2 in Mizoram, 2 in Nagaland, 2 in Manipur, 2 in New Delhi. I think that should satisfy the honourable member. G. Madhvi. Thank you, Speaker, sir. Has the government entered into any collaboration with domestic or international private players to improve the forecasting for rains and monsoons? Honourable Speaker, sir, we have one of the best forecast systems, which is not only providing the service for the domestic reasons, but also to the neighbouring countries like Nepal, Bhutan, Afghanistan, Sri Lanka, and as the earlier member had questioned whether the satellite facility is also being utilized, I like to share in response to this question that under the instructions of Prime Minister Modi a few years back, we had launched what is known as the SARC satellite, which also caters to the satellite information of the neighbouring countries through India. Most of the neighbouring countries, barring Pakistan for its own reasons, are not part of this. Now, as far as the forecast is concerned, I told you it is given in different parts. We have a seasonal forecast for the next 3 to 4 months. We have extended range forecast, which is done every Thursday for the next 4 weeks. We have short to medium range forecast, which is done for 5 days. And we have very short, 3 hours. And in total, in India, we have more than 1,085 towns and districts which have these stations. In fact, it is India which is collaborating to the benefit of the other countries. Question number 290, Bhagirath Chaudhary. Question number 290. माननीय मंत्री जी, रेल मंत्री जी, 290. सभा पटल पर रखा है. अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मेरे रेल मंत्री जी से निवेदन है कि 2018-19 में उस बजट में किसठ में 2 एक्सीलेटर और 1 लिफ्ट का उसमें घोषणा करी थी और बजट में वो पास किया हुआ था. परंतु मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय जी के निर्देशन में अभी 20 तारीख को DRM साहब जयपुर से और सारे वहाँ अधिकारी आए थे और उन्होंने 2 एक्सीलेटर और 1 लिफ्ट के लिए उन्होंने हाँ भर ली है. इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री महोदय जी का और सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा. अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि 18-19 में वहाँ पर 1 एक्सीलेटर और 1 लिफ्ट सैंक्शन थी, लेकिन स्टेशनों पर एक्सीलेटर का प्रावधान की जो नीति में संशोधन हुआ और जहाँ पर 25,000 लोगों की आवाजाही वहाँ देने का प्रावधान था,
लेकिन अभी माननीय सदस्यों ने बोल दिया कि हमारा सैंक्शन हुआ है, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 295 और 296 क्लब किया जाता है। श्री रामचरण बोरा। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2018 में बजट में घोषणा हुई थी जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे का दोहरीकरण के बारे में 950 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन आज तक ये काम चालू नहीं हुआ है। ये काम कब तक चालू हो जाएगा, इसका मैं मंत्री से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष हमारा सभा पटल पर रखा है कि अभी रेलवे अनुसंधान विभाग ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जो दुर्घटना को रोकने के लिए कारगर सिद्ध होगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये प्रणाली कब तक पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी और पूरे देश में कब तक लागू होगी, ये जानना चाहता हूं। अगर रिपीट करें तो अध्यक्ष जी, अगर आपकी अनुमति तो एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करें। क्वेश्चन नंबर माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से जानना चाहूंगा कि जयपुर सवाई माधोपुर लाइन का दोहरीकरण का काम बजट 2018 में प्रावधान किया गया था, घोषणा की थी, लेकिन ये अभी तक चालू नहीं हुआ है। ये कब तक चालू करने का संभावना है, इसका उत्तर चाहता हूँ। साथ ही में मैं माननीय मंत्री जी ये भी जानना चाहता हूँ कि रेलवे के अनुसंधान विभाग ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जो दुर्घटनाओं को रोकने में कारगर साबित होगी। ये कब तक विकसित हो जाएगी और कब तक इसको चालू करेंगे, तो कृपया आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है जयपुर सवाई डबलिंग का, ये अभी अध्यक्ष महाराज ये प्लानिंग स्टेज पे है। मेघवाल, निहाल चंद मेघवाल। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वर्ष 2018-19 में रेलवे विभाग द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र के जोड़किया, हिरणावाली, बुगलावाली, दलपत सिंहपुर और मेरा सांसद आदर्श गांव जोरावरपुरा, बुग्गिया, फतेहगढ़ सिंह वाला और मसानी वाला मोहनगरी रेलवे स्टेशन अपग्रेड 2018 में किए थे, जिनको अब तक चालू नहीं किए है। इसके साथ साथ में हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता है, उसकी एक ऐतिहासिक जो पीलीबंगा रेलवे स्टेशन है उसको अपग्रेड करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, वो कब तक करने का वो आश्वासन दे रहे हैं। धन्यवाद। माननीय सदस्य का आवाज तो ठीक से सुनाई नहीं देता, लेकिन बाद में मैं माननीय सदस्य से मिलूंगा, उनसे जानकारी लूंगा। माननीय सदस्यगण, आज शहीद दिवस है। मेरा आपसे आग्रह है कि हम सब अपने दायित्वों को निभाएं, कर्तव्यों को निभाएं, देश हित में काम करें, राष्ट्र हित में काम करें। मैंने सुबह आप सबको संदेश दिया था कि अमृत महोत्सव में हम उन शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हुए राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित हों। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। आप अपनी सीट पर जाकर बैठें, मैं आपको मौका दूंगा आपकी बात को रखने का शून्यकाल में। आप अपनी जगह पर सीट पर जाकर बैठें, मैं शून्यकाल में आपको मौका दूंगा। प्रश्नकाल आप सबका है, हम सबको अपना दायित्व निभाना चाहिए। आप देर रात्रि को बैठकर सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। एक एक विभाग की डिमांड फॉर ग्रांट पर 11-11 घंटे चर्चा मिलती है। मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन आपका है, आपने चुनकर भेजा है। आप इन विषयों पर भी बुनियादी सवाल उठाना चाहते हैं तो आप सीट पर जाएं, आप इस विषय पर सीट पर जाएं। मैं आपको इस बुनियादी सवाल पर भी आपको मौका दूंगा, लेकिन सदन को नियोजित तरीके से स्थगित कराना ये हमारी संसदीय परंपराओं के अनुसार नहीं है। आप नियोजित तरीके से
सदन को स्थगित कर जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, ये उच्च सदन की मर्यादा नहीं है। प्लीज जाइए अपने सीट पर, मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दे रहा हूं। जाइए, जाओ आप अपनी सीट पर, मैं आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।